अशोक जी, आपने ये जो कॉन्फ्रेंस आज की, जब संजय लीला भंसाली पे हमला हुआ था उस समय इस तरह का एक्शन फिल्म इंडस्ट्री ने क्यों नहीं लिया था? आप मतलब उस दौरान आपने शायद देखा नहीं होगा कि किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे और किस लेवल पे हम एक्ट कर रहे थे। और दोस्त एक बात बताऊं, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम मेंटली उस एरिया में नहीं है कि हम सड़क पे आके हम गाली गलौज करेंगे और चिल्लाएंगे। हमको भी समझने में टाइम लगेगा। ये तो आज हम जमा हुए हैं और ये आगे बढ़ेगी बात बॉस। उस वक्त क्यों नहीं किया और इस वक्त क्यों नहीं किया, आई थिंक दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। ये सवाल सही नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं बॉस, हम लोग मोर्चेबाजी वाले लोग नहीं हैं, ना हम मारामारी में बिलीव करते हैं ना हम करते हैं। अब अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ गई हैं तो आई थिंक दिस अ वेरी गुड फीलिंग विच द एंटायर इंडस्ट्री हैज गॉट टुगेदर। अब एक डर भी होता है, एक आदमी सहमता भी है किस लेवल पे हम ये करेंगे। और एवरीबडी इज आदमी जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो खड़े हुए हैं और धीरे धीरे इस मैसेज को हम पास करेंगे या वेल यू राइट। पद्मावती मतलब देखो क्या है, वी ऑल सेड दैट not only Padmavati, we spoke about Hindu Sarkar also. Any film, any work which has been approved, Sudhir is here, yeah. Yeah, but we stood up for Urta Punjab. We stood up for lipstick under my burqa. So, I mean, in fact, there has been a very good change. Give it time, right? From a time when a filmmaker was battling alone, today a young person like Alankrita, right, has the support. Did you ever see this happen before in the industry? I mean, Kushan Nandi sitting here. Bhansali is a big name, but we stood for Kushan. It is a small film, right? His first film, right? So, I mean, everything has an opportunity. You know, I mean, I know this is an interesting question, but stop the interesting question and appreciate the effort that. And it's difficult to get this together, huh? It's everybody, and still, I mean, whether we agree with Bhansali or whether I agree with Bandukbaz, whether I agree with Alankrita, you have to stand and united in front of when there's an attack on democracy itself. So this attack, we are here to. You are absolutely any film, any work. Anything, we are here to protest against it. There is no two opinions on that. This is not, we are not taking sides, and it's not कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. We stood for every film, and to be very honest, ये कुछ ज़्यादा हो, मतलब it's going over our heads now. We are feeling insecure. That's why we have got to there. We are feeling insecure. We are getting frightened. We are getting fearful. The entire industry is under fear psychosis that whether we should make films or not make films. So this जो डर पैदा हो गया है, ये डर के सामने खड़ा होना, उसको अपोज करने के लिए हिम्मत चाहिए. And we all the organizations have gained that confidence, and we will see to it that somewhere things will get into the right frame. There's no two opinions on that. अशोक जी, आप सभी यहाँ पर, अशोक जी, आप सभी यहाँ पर जिन्हें सपोर्ट करने आए हैं संजय लीला भंसाली को, आपको नहीं लगता कि उनके टीम से या उन्हें खुद भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था? सुशांत ने पहला सेंटेंस बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय लीला भंसाली की नहीं है. जो विक्टिम होता है ना, जिस पे अटैक होता है, उससे आप उम्मीद मत करिए कि सड़क पे आके बाहर आके बात करेगा आपसे. सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट एरिया. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पांचों एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उसकी है. It's a fraternity. As I rightly said in the beginning, that Sanjay Leela Bhansali is a symbol. This is an attack on the entire industry. This is not an attack on a single person. हम सिर्फ संजय लीला भंसाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सारे फिल्म मेकर्स, सारे फ्रेटर्निटीज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. इन पे ये लगातार अभी जो अटैक हो रहा है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है, क्योंकि ये चल रहा है, उसका रेफरेंस है. अशोक जी, मेरा क्वेश्चन, I'll answer this question. There are two issues. One sec. There are two issues. One is CBFC. You become a victim of CBFC. So it is that
particular film which has been cut and edited and not allowed to release. When people are on the streets, when political parties are on the streets, when there is a fear, आप देखिए उसके घर के नीचे line से there are more than 100 policemen standing there. So we don't want to take a risk on their attacks or something like that. And it is our responsibility also. It is your responsibility also. वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? I think it's not in. अशोक जी, आपने जैसे कहा कि फर्स्ट टाइम 5 एसोसिएशन हैव कम टुगेदर. डू यू फील सो कि आप लोगों की मतलब आज के पहले आपस में कितनी यूनिटी है? और ये पूछना था कि कभी भी कोई मेकर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो डू दे रियली बिलीव इन द बॉडी और दे मेनी टाइम टेक द पॉलिटिकल हेल्प, यू नो, एक्चुअली दैट इज व्हाट यू रियली फील बिकॉज़ इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स. ऐसे होता है बहुत. नहीं, पहली बात तो ये है कि हम लोग आपस में कैसे हैं क्या नहीं है. दोस्त जब फिल्म बनते हैं ना तो सारे डिपार्टमेंट के लोग सेट पे होते हैं. तो अगर वो यूनिटी नहीं हुई तो सेट पे होंगे नहीं. तो ये धारणा अपने आप से निकाल लीजिए, क्योंकि हम सब एक साथ काम करते हैं, एक ही सेट पे होते हैं. तो यूनिटी कोई फिल्म इंडस्ट्री को नहीं सिखा सकता, ना हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री को सिखा सकता. वी नो व्हाट यूनिटी इज ऑल अबाउट एंड वी ऑल मेक फिल्म्स टुगेदर. एक फिल्म में 200 लोग होते हैं जो साथ में काम करते हैं, 200 लोग से ज़्यादा लोग होते हैं. तो जब तक यूनिटी नहीं हो तब तक फिल्म बन नहीं सकती. और लेट अस फॉर गॉड्स सेक बी टुगेदर सो दैट ये बार बार जो हम पे अटैक्स होते हैं, बार बार जो हमारे ऊपर सवाल उठते हैं, हमारी इंटेंशंस पे सवाल उठते हैं, वो नो. डेफिनेटली द फिल्म इंडस्ट्री today with these organizations, tomorrow with some more organizations, tomorrow the producers association will come together, hopefully, and we will see to it that there has to be some stop on this. We compliment Prasun Joshi's statement saying that the film will come to CBFC. We will take a call, and he has condemned the people who have taken this kind of this thing. We really want to compliment Prasun for this. We also want to request our dynamic INB Minister Smriti Irani ji that please give us confidence, please protect us. We are writing letters to her tomorrow. We are writing letters to Rajnath Singh ji, the Home Minister, that we should be secured, we should be protected, because we filmmakers contribute a lot to this image of this country. We are great filmmakers, we are creative people. तो हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जितनी की बाकी इंडस्ट्री है. संजय लीला भंसाली ये हमारा सबका दोस्त है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ. इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. समझिए कि गलती अगर हो गई है भी तो यू हैव द पेन, पेपर, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ कि भाई संजय लीला भंसाली ने ये जो दिखाया ये हमको पसंद नहीं है. लेकिन आके लाठी घाटी चलाना, सेट्स जलाना, भगाना, मारामारी करना, दिस इज समथिंग वेरी foolish. So I condemn this sort of behavior from so-called audiences. I wish Sanjay Leela Bhansali all the best. जो भी कोई गलतियाँ होती है वो हर एक के हाथों से होती है, मेरी हाथों से होती है, आपके हाथों से होती है, सभी के हाथों से होती है. हम गलती करते हैं इसलिए हम इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है. संजय लीला इज़ नॉट भगवान. लेकिन अगर गलती हो गई है तो उसको बताने के लिए कोई अलग तरीके होते हैं डेमोक्रेसी में, उसको अपनाइए. ये हमारा अपील है सारे ऐसे उन लोगों को कि जो संजय लीला भंसालिया उसका काम जो है वो नापसंद करते हैं. मत देखिए फिल्म. अगर देखने के बाद अच्छा, जिन्होंने देखी भी नहीं है वो भी शुरू करते हैं कमेंट्स. पहले फिल्म देखो. सेंसर भी आप ही के लोगों ने तैयार की है, आप ही ने तैयार की है. तो सेंसर के सारे लोग अनपढ़ हैं. अगर सेंसर ने उनको सर्टिफिकेट दिया है पब्लिक शो के लिए, एग्जीबिशन के लिए, इसका मतलब है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको किसी को ठेस पहुंचे, किसी विशिष्ट समाज को ठेस पहुंचे. ऐसा कुछ नहीं है. और अगर ऐसा विचार किया जाए कि इसी तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल फिल्में जो बनी हैं, पॉलिटिकल फिल्में या हिस्टोरिकल तो बात की बात है, मैं पॉलिटिकल फिल्मों की बात कर रहा हूँ. उसमें तो ऐसे कितने सारे ऐसे किस्से हैं कि जहाँ लोगों ने गुनाह किया है पॉलिटिकल
पर्सनालिटीज़ में, लेकिन उसको अच्छा बताया है, तब कहीं कोई उठ के नहीं आता है कि नहीं ये गलत है। तो इसको संभालना चाहिए ऑडियंस ने। और ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आप सभी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी दोस्तों से कि ट्राई टू बी जस्ट। अगर आप लोगों के हाथों में है ना, फिल्म बाहर आने के बाद आप भी बताएंगे, लिखेंगे, आपका अधिकार है वो, तो आप कीजिए, जो करना है बोलिए। जिनको देखनी है फिल्म वो देखेंगे, नहीं देखनी है नहीं देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Zama, Zama ji from the Writers Association. He is a very important member from the Writers Association. देखिए, खबर और कहानी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि खबर वही होती है जो घटना को हम एज इट इज़ बता देते हैं, और कहानी वो होती है जब हम उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं। सो वो इंटरप्रिटेशन हमेशा स्टोरी टेलर का अपना होता है, इसलिए वो कहानी कह भी रहा है। और हर कहानीकार का, हर डायरेक्टर का अपना एक मंशा अपनी होती है कि मैं इस कहानी को इंटरटेन करके सुनाऊं। कभी भी किसी भी कहानीकार या किसी भी डायरेक्टर की मंशा नहीं होगी कि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए कहानी लेके आ रहा हूं बाजार में, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि फिल्म जहां पे इतने पैसे एट स्टेक होते हैं, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी फिल्म कोई ना देखे, मेरी फिल्म का मतलब बहिष्कार हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा। सो ये हम सबको एक चीज़ समझनी है कि हर डायरेक्टर, हर कहानीकार चाहता है कि मैक्सिमम लोग इस फिल्म को देख सकें, ताकि मैक्सिमम, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक फिल्म पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बिके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। ये बड़ा कमर्शियल एंगल है। सो किसी संजय लीला बंसाली हो चाहे कोई भी हो, वो नहीं। दूसरी बात एक चीज़ है कि अभी जो ऑफलेट हो रहा है, हम सरकार चुन रहे हैं ताकि वो हमारी देखभाल करें, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, हम हर चीज़ की हमारी वो जिम्मेदारी लें। ये मोहल्ले मोहल्ले के जो सरकार बनते जा रहे हैं, वहाँ पे एक अनार्की की तरफ हम जा रहे हैं। दिस शुड नॉट बी डन। यहाँ पे सिर्फ मेरी या इनकी या उनकी कोई राय नहीं है, यहाँ पे आप सबको भी प्लीज़ एज जर्नलिस्ट आप सबको भी हमारे साथ आना होगा और उनको बताना होगा कि भाई ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कंप्लेन करना। कंप्लेन करने के 10 तरीके आपको बताए गए, हमें भी बताए गए। मैं 50 फिल्में पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ देखने के लिए। मुझे कई डायरेक्टर पसंद नहीं है, मैं उनकी फिल्में नहीं देखता हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं उनको घर जाके उनके दरवाजे पर खड़ा नहीं हो जाता हूँ कि तू कल से फिल्म नहीं बनाएगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ये क्या ये बेवकूफ़ी है। सो ये प्लीज़ हमें समझना होगा कि, और दूसरी बात ये कि एक शख्स का आप बॉडी ऑफ वर्क देखिए, जिस आदमी ने पिछले 20 साल में 25 साल में इतना कुछ किया हुआ है। हम ऐसे ही मतलब मैं तो जानता तक नहीं हूँ, मैं मिला तक नहीं हूँ। सुधीर जी से मैं बहुत कम ही मिला हूँ, लेकिन उनका बॉडी ऑफ वर्क देख के मैं खुद अपने आप में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। इसमें वो डिमांड नहीं करते हैं हमसे, वो कमांड करते हैं रिस्पेक्ट। और ऐसे शख्स को कोई आदमी हाथ से मारे, कोई बदतमीजी करे, इस छिछोरेपन पे हम आ गए, इस तरह की सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है? सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जो सरकार का काम है सरकार को करने दें, जो हमारा काम है, जो हमारी पब्लिक का काम है, वो पब्लिक उसी लेवल पे करें, एक अच्छी सिविल सोसाइटी की तरह बिहेव करें, ना कि वो मोहल्ले का हम सब ने अपना एक मतलब झंडा उठा लिया है, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। तो भाई सरकार हट जाओ, भाई इन्हीं लोगों को चला लेने दो। हर मोहल्ले मोहल्ले में जो जीतेगा अपने अपने मोहल्ले में कर लेगा। हम कबीले वाली ज़िंदगी जी लेते हैं, पुराने ज़माने में जंगलों में जैसे जिया जाता था। सो प्लीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले फिल्म देखो, समझो, और वो सामने वाला आपको बार बार कह रहा है कि मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूं जिस पे आपको शिकायत है, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? आप देखिए तो सही, प्लीज़। थैंक यू।